Good morning, students. Welcome to your physics class. Yesterday we have done the experimental verification of Lenz's law. So one question is more with Lenz's law, that is, does it obey the law of conservation of energy or not? So students, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, does the Lenz's law obey the law of conservation of energy or not? तो उसमें देखेंगे, देखो क्या होता है Lenz's law में. When north pole of the magnet is moved towards the coil, then upper face of the coil acquire north polarity. Therefore, the work has to be done against the force of repulsion in bringing the magnet towards the coil. And north pole of the magnet is moved away from the. If the north pole of the magnet is moved away from the coil, then north pole of the magnet is. Then south polarity is developed on the upper face of the coil. Therefore, work has to be done against the force of attraction. देखिए दो केस आ रहे थे इसमें. अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो मैग्नेट को दूर जाने से रोकना है, मैग्नेट पास आ रहा है और मैग्नेट को पास आने से रोकना है. इट मीन्स दोनों केसेस में देयर इज ए मैकेनिकल वर्क डन, मीन्स मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं. सो इट इज द मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल दैट चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है that changes into electrical energy producing induced current. Therefore the energy is transferred only. देखो इसमें बता रहा है मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं फ्रंट और बैक में. सो देयर इज अ चेंज इन mechanical work done. There is mechanical work done by bringing the magnet towards the coil or away from the coil. So it produces a induced current. Therefore energy is transferred only. Hence Lenz's law obeys the law of conservation of energy. तो इस केस में ये होता है कि मूवमेंट हो रही है, मैग्नेट की मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल. सो इन दिस वे देयर इज अ चेंज इन मैकेनिकल वर्क डन एंड मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहा है. सो इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अब राइट हैंड रूल में क्या आता है ये आपने पहले पढ़ा था. इफ यू स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड इन सच ए वे दैट दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस. आपने राइट हैंड को लेना इस तरह से, ठीक है. फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, देन द फर्स्ट फिंगर points along the direction of magnetic field. Thumb is along the direction of motion of the conductor. Center finger gives the direction of current. मैंने आपको बताया था सेंटर फिंगर ये आगे फादर मदर चाइल्ड. जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल किया था वैसे राइट हैंड रूल याद रखना है. तो फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, इस तरह से याद रखना आपने. सो तीनों को याद रखने का तरीका आ गया. फादर मदर चाइल्ड मीन्स फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर फिंगर जो है वो करंट शो करेगी. Okay, so this is the Fleming right hand rule. Now there is a question, explain the methods of producing induced EMF. So there are different methods of producing induced EMF. We know that Faraday's law, according to Faraday's law, the induced EMF, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, E is equal to minus n d phi upon dt, where phi is equal to b a cos of theta. Phi क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, b मैग्नेटिक फील्ड, a एरिया एंड cos theta is the theta angle is between these magnetic field and area. This show that the EMF depend upon the number of turns and rate of change of magnetic flux, and magnetic flux can be changed by. देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं? by changing the magnetic field, either by changing the area, either by changing the orientation between these two. So ये आपके पास मेथड आ गए. by changing the strength of the magnetic field, B. Number 2, changing the orientation theta between the coil and the magnetic field. Number 3, by changing the area of the coil. तो एरिया को हम चेंज करके भी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस दीज 3 points. Okay, so our first point is induced EMF by changing the magnetic field.
So our first point is induced EMF. Induced EMF by changing the magnetic field. Magnetic field B. Okay. So देखो, in Faraday experiment, the motion of the magnet towards the coil increases the magnetic field B and vice versa. And galvanometer shows the deflection, thus EMF is induced by changing the magnetic field. देखो, फ्राइडेज एक्सपेरिमेंट हमने किया था, ये कॉइल लेते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम एक बार मैग्नेट लेके आते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल. नाउ व्हेन वी ब्रिंग द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, सो इस केस में क्या होता है, बी इंक्रीजेज. ठीक है. अगर ये इसको पास में लेके जा रहे हैं, अगर इसको दूर लेके जा रहे हैं, सो बी डिक्रीज करेगी. वाइस वर्सा हमने बोला है, मीन्स इसको पास लेके आएंगे तो इंक्रीज करेगी, इसको दूर लेके जाएंगे तो बी डिक्रीज करेगी. सो एज वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा. सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. If there is increase or there is decrease in magnetic flux, it means there is change in magnetic field. If there is change in magnetic field, अगर B इंक्रीज कर रहा है तो फाई भी इंक्रीज करेगा, B डिक्रीज कर रहा है तो फाई भी डिक्रीज करेगा. ओके. It means if there is change in magnetic field, then magnetic flux also changes, and due to the change in magnetic flux, a current is induced in the circuit. Current is induced in the circuit. Okay, so this is our first point. ये आपके पास आ गया induced EMF by changing the magnetic field. Second point आता है induced EMF by changing the area A. अब second करेंगे डिस्कस. Induced EMF by changing the area A. एरिया को चेंज करके ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी, इसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा. कंसीडर कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल. एक कंसीडर कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल. ये हमने कंडक्टर कंसीडर कर लिया. दिस इज पी, दिस इज क्यू. उसकी जो लेंथ आ रही है, दिस इज स्मॉल एल. ओके. मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन paper with uniform velocity v on a rectangular conductor ABCD. तो रेक्टेंगुलर कंडक्टर पे मूव कर रहा है ये गैल्वेनोमीटर लेते हैं. सो दिस इज रेक्टेंगुलर कंडक्टर A B C D. दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, दिस विल शो द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नाउ देखो, ये आर्म जो पी क्यू आर्म है, इट विल मूव इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वी. ये वी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी. ओके. लेट ए चार्ज क्यू इन ए कंडक्टर ऑल्सो मूव इन द फील्ड विद सेम वेलोसिटी. सपोज करते हैं कि क्यू चार्ज मूव कर रहा है विद सेम वेलोसिटी, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, पहले निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लॉरेंस फोर्स. एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी. डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑन चार्ज along PQ towards Q. ओके. P से लेकर Q तक मूव कर रहा है वो चार्ज, P टू Q. ओके. सो वर्क डन आपके पास आएगा W इज इक्वल टू एफ एम इंटू पी क्यू. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. फोर्स आपके पास आ रही है क्यू वी बी इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जहाँ तक है एल. देयरफॉर ई एम एफ अक्रॉस द कंडक्टर पी क्यू इज, सो ये आएगा E इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. E इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. सो वर्क डन आ गया क्यू वी बी एल ओवर क्यू. क्यू से क्यू कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू बी एल वी. सो दिस इज अ इंड्यूस्ड EMF. ओके.
So this is the second method. Number third, induced EMF by changing the orientation, of coil and magnetic field. अब ओरिएंटेशन क्या चीज़ आ रही है आपके पास, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा. सो थीटा इज द ओरिएंटेशन. व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, the angle theta between the normal to the coil and the direction of the magnetic field also changes. Therefore, the magnetic flux linked with the coil changes and hence EMF is induced in the circuit. So this is the third method. So there are three methods of producing induced EMF. So students, I hope you all understand this topic. Thank you very much.